activity related to rotational symmetry in alphabets and numbers. First, this is a rectangular sheet which is divided into two equal parts, and we will take first alphabet A and we will turn it around half, and we have seen that it is not coming the same, so it is not showing rotational symmetry. Now let us take another alphabet E. Now we will see if it is showing the rotational symmetry. No, it is upside down, so it is not showing rotational symmetry. Now we will take another alphabet H. Now we will see this comes the same. It is looking like H only, so this alphabet is showing rotational symmetry. Now let's take with some numbers. Let's take 7. Now 7, does it show rotational symmetry? No, it is upside down, so it is not showing rotational symmetry. Now we'll take another digit. Let's take 6. Now, oh, it becomes 9 now, but it is not 6, so we will consider it as not showing rotational symmetry. Now let's take 8. Good morning to all. Myself Seema Kumari from Kendriya Vidyalaya Sainik Bihar, first shift. So this is my teaching learning materials. This is my TLM. So this is a measuring jars. So through these measuring jars, you will be able to understand the concept of capacity. So first you know that what is capacity. The amount that a container can hold. It means how much fluid fit inside a container. So, so there are 5 measuring jars: A, B, C, D and E of different capacities. The capacity of A jar is 100 ml. The capacity of B jar is 200 ml. The capacity of C jar is 250 ml. The capacity of D jar is 300 ml, and the capacity of E jar is 500 ml. So you know it is measured in liters or milliliters. So you will know that a small quantity of milliliter is used in a small quantity, and liter is used in large quantities of water. So A, B, C, D and E jar contains water. So I have some questions for you. So which jar contains the most water? Yeah. So answer is E, because the capacity of E jar is 500 ml. And question number 2, which mug contains the least amount of water? Answer is A, because the capacity of A jar is 100 ml. इसकी कैपेसिटी, इसके वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है? 100 ml. तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम. And you know how many milliliters in 1 liter? So you know 1000 milliliters in 1 liter. 1 liter में कितने milliliters होते हैं? 1000. And my question number 3, which has more capacity? A, B, C, D and E. So answer is E, because the capacity of E jar is 500 ml. The capacity of C jar is 250 ml. The capacity of D jar is 300 ml, and the capacity of B jar is 200 ml, and the capacity of A jar is 100 ml. So thank you. आज हम देखेंगे मैथ्स का एक ऐसा टीएलएम जिसमें बच्चे क्वेश्चन खुद फॉर्म कर सकते हैं और आंसर भी उसका फाइंड कर सकते हैं, जिनसे हम सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर करा सकते हैं। जो मेरा ये मैथ्स का टीएलएम है, ये क्लास 2 और 1 के लिए है। ये मैथ्स का टीएलएम है जिसमें मैंने ऊपर वाले स्ट्रिप जिसमें ग्रेटर नंबर रहेगा, नीचे वाले स्ट्रिप जिसको हमें माइनस करना है, और जो लास्ट स्ट्रिप है स्ट्रिप नंबर 3, इसमें हम आंसर फाइंड, ये हमारा आंसर स्ट्रिप है।
तो हम बच्चे को मान लेते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, हम सेकंड क्लास के बच्चे को क्वेश्चन जब देते हैं तो हमेशा ऊपर वाला नंबर ग्रेटर रखते हैं ताकि बच्चा इजीली ये सब कर पाए जब हम स्टार्टिंग में उसको सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। तो अगर मैं इसमें बच्चे को सबसे पहले सब्ट्रैक्शन सिखाती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ कि वो 8 ऊपर मैंने दिया है, अगर 8 में से मुझे माइनस करना है 1, 8 में से अगर मुझे माइनस करना है 1 तो आंसर मेरा क्या होगा? बच्चा फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद वो इस स्ट्रिप को लाके यहाँ पर रोक देगा। अगर 8 में से माइनस किया जाता है 1 तो आंसर विल बी 7। इसी तरह से अगर मैं 8 को यहीं रखती हूँ और यहाँ पर कोई नंबर में 0 ला देती हूँ तो 8 में से 0 अगर माइनस होता है, 0 वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ बच्चे को दे सकते हैं। किसी नंबर में से अगर 0 डिडक्ट किया जाता है तो वो नंबर सेम ही हमारा नीचे आएगा। तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। हम इसमें बहुत तरह से बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर हमारा नंबर, मैंने ऊपर कोई नंबर नहीं दिया है सपोज, और हमने नीचे यहाँ पे दे दिया है 4 और आंसर में लिखा है 2, तो हमारा ऊपर जो ग्रेटर नंबर है वो क्या आएगा? किस नंबर से मैं 4 को माइनस करूं कि मुझे 2 मिले? तो बच्चे सोचेंगे अपनी फिंगर के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, या फिर वो जो स्टिक्स बनाकर, लाइंस बनाकर काउंट करते हैं वो उस प्रोसेस से करेंगे और यहाँ फाइंड करेंगे कि क्या नंबर हो सकता है जिसमें अगर मैं 4 माइनस करता हूं तो 2 मुझे मिलता है। तो वो यहाँ पे करके देख सकता है। 9 में से 4 गया, 2 नहीं आ रहा है। 8 में से 4 गया, 2 नहीं आ रहा है। 7 में से अगर 4 माइनस होता है तो 2 आंसर नहीं मिल रहा है। अगर वो यहाँ पर करके देखता है 6 में से 4 अगर माइनस किया तो आंसर उसका हमारे पास 2 आ जाता है। ऐसे ही हम बीच वाली स्ट्रिप में कर सकते हैं। बीच वाली स्ट्रिप को हम ब्लैंक बच्चे को दे सकते हैं और हम उससे पूछ सकते हैं कि 6 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर जो है 2 आए। बच्चा यहाँ पे करके देख सकता है स्ट्रिप में। 6 में से 0 जाता है तो 2 नहीं आएगा। उसको पता है बीच वाली स्ट्रिप में ग्रेटर नंबर नहीं लेना, तो 6 से कम नंबर पे जाएगा। 6 में से 5 माइनस करने की कोशिश करेगा तो आंसर 2 नहीं है। 6 में से अगर वो 4 माइनस करता है तो आंसर विल बी 2। यहाँ पर बच्चा करेक्ट है। तो उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़े क्लियर हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहली पिक्चर में 1 बर्ड है एंड देन उसके बाद सेकंड बॉक्स में भी 1 बर्ड है। तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें 1 + 1 2 बर्ड्स मिल गए हैं। एंड देन जब हम नेक्स्ट सेकंड पिक्चर की तरफ पढ़ते हैं तो हमने फर्स्ट बॉक्स में 1 स्माइली देखी, सेकंड बॉक्स में हमारे पास कोई स्माइली नहीं है। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 0 = हमें अगेन थर्ड बॉक्स में 1 स्माइली मिल जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड बॉक्स की, तो उसमें हम 3 बटरफ्लाइज देख पा रहे हैं और सेकंड बॉक्स में 2 बटरफ्लाइज देख पा रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 5 बटरफ्लाइज मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास में अपना एडिशन का टॉपिक जो है कलरफुल चार्ट के थ्रू बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं और बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे और आसानी से सीखेंगे। और क्योंकि बच्चे कलरफुल पिक्चर से, कलरफुल थिंग्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह के चार्ट पेपर के थ्रू उन्हें एडिशन का कंसेप्ट कराते हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं मैथ्स में हम मैथमेटिकल शेप्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो आज हम 10 ग्राम की हेल्प से रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ पीसेस देख रहे हैं जो मैंने शेप्स कट करके रखी हुई हैं और अब हमें इन्हें अरेंज करना है टू मेक अ रेक्टेंगल। तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया कि ये एक स्क्वायर लगे। देन फिर मैंने ये छोटा स्क्वायर एडजस्ट किया एंड देन उसके बाद में मैंने ये ट्रायंगल एडजस्ट किया। देन फिर ये बिग ट्रायंगल मैंने एडजस्ट किया एंड देन ये पैरेललोग्राम मैंने एडजस्ट किया एंड देन ये
छोटा ट्रायंगल मैंने एडजस्ट किया। तो एक प्यारी सी पिक्चर जो है रेक्टेंगल की हमारे सामने आ गई है। अब हमें करना क्या है, जस्ट इस ट्रायंगल को उठाना है और इसको हमें इस तरह से अरेंज कर देना है। और देखो आपको ये अब ये पिक्चर जो है वो ट्रायंगल की दिखाई दे रही होगी। तो हमने इन 7 पीसेस से रेक्टेंगल बनाना भी सीख लिया और ट्रायंगल बनाना भी सीख लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे टेंग्राम बनाना। मैथ्स में टेंग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है और टेंग्राम बहुत तरह से हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। तो हम देखते हैं कि टेंग्राम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप कोई भी एक ऐसी शीट ले लेंगे। ये शीट प्लेन पेपर हो सकता है या कार्डबोर्ड भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब हम छोटे बच्चों को सिखाएंगे तो हम पेपर से सिखाएंगे, जिसमें बच्चों को स्केल की मेजरमेंट, स्केल से मेजर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैंने जब टेंग्राम बनाया तो मैंने 3 पेजेस की लेयर बनाई थी, जिससे थोड़ा टाइट हो जाए हमारा पेपर और एक्टिविटी बच्चे करने में ज्यादा इंजॉय करें। तो टेंग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले A4 साइज पेपर को स्क्वायर साइज में ले लेना है। तो स्क्वायर साइज के लिए हम पेपर के एक कॉर्नर को लेंगे और उसको एक ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। यहाँ देखिए आप एक ट्रायंगल देख सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये कट होने के बाद आप देखेंगे जितनी भी लाइंस हमारी इसमें बनते जाएंगी, हम उन लाइंस को सबको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये जितनी भी लाइंस हमारे यहाँ पे बनते जा रही हैं उसमें हम मार्क लगाते जाएंगे, उस पे पेन से एक लाइन बनाते जाएंगे। इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये हमारे लिए कब और कैसे हेल्पफुल रहेंगी। ये मिड लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पेपर को हाफ फोल्ड करेंगे। हाफ फोल्ड करने के बाद जो लाइन बनेगी उसको भी हम पेन से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको हाफ को भी हाफ फोल्ड करना है दोनों साइड से। इससे क्या होगा, जो हमारा पेपर है वो 4 इक्वल पार्ट में या स्ट्रिप्स में हम बोले तो वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और हम इस लाइन सब लाइंस को पेन से इस तरह से मार्क कर लेंगे। इससे हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा टेंग्राम कटेगा वो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कटेगा, जो इसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। अब देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसका एकदम रिवर्स हम क्या करेंगे, दूसरा साइड फोल्ड लेंगे। इसी तरह से हम इसको करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। ये देखिए बच्चे इस एक्टिविटी को करने में बहुत एंजॉय करते हैं और जब तक वो सॉल्व नहीं कर लेते वो ट्राई करते रहते हैं। ऐसे 2 चीजें होती हैं, एक ज्योमेट्रिकल टर्म वो लर्न कर लेते हैं, दूसरा उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब यहाँ पे भी हमारी 4 लाइंस आ गए हैं। तो इन 4 लाइंस को हम पेन से लाइट मार्क कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। ये लीजिए आप देखेंगे बिग स्क्वायर में हम 4 इक्वल स्क्वायर्स हम देख सकते हैं। नाउ काउंट विथ मी, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस बिग स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो हमारा 4 इंटू 4 है, एक एरिया निकालने का फॉर्मूला, 4 साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया। तो अभी यहाँ पर आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को बताते हैं कि ये एक साइड जो एक बॉक्स की लेंथ है, अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो टोटल लेंथ कितनी होगी 1 साइड की, तो 1 2 3 4। स्टूडेंट्स बताएंगे ये 4 सेंटीमीटर होगा।
तो अब अगर हम उससे पूछते हैं बाउंड्री क्या होगी, तो बच्चे इजीली बता सकते हैं 1 2 3 4 4 4 4 इक्वल साइड्स हैं, तो 4 4 4 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया पूछते हैं, एक बॉक्स का एरिया अगर हम बच्चे को बताते हैं ये 1 सेंटीमीटर है हमारा वन साइड, तो अदर साइड 1 सेंटीमीटर, साइड इनटू साइड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमने काउंट किया था 16 बॉक्स आर देयर इन दिस स्क्वायर, तो हमारा टोटल एरिया हो जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे बच्चे इजीली फाइंड कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि हमारा एक स्क्वायर, देखिए एक स्क्वायर में हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, 2 स्मॉल ट्राइंगल्स यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 स्मॉल ट्राइंगल अगर इक्वल ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं इस वाले पेपर से स्मॉल, तो वो किसके इक्वल है, 1 स्मॉल स्क्वायर के, मीन्स उसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पेनग्राम की तरफ बढ़ते हैं। उसको बनाने के लिए हम कैसे उसकी लाइन या मार्किंग करेंगे, तो ये पेपर है, इसके मिड में जो लाइन हमने बनाई थी बिल्कुल वही बनाएंगे, उसी पे जाएंगे। ये देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जो हमने ऐसे फोल्ड किया था, अब हम इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे अपोजिट, और उसके बाद देखिएगा हमारे पास एक और लाइन आ जाएगी बीच में, उसमें से हमें हाफ लाइन को बनाना है, उसमें से हम हाफ ट्रायंगल को बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास 2 इक्वल ट्रायंगल्स हैं। अब एक और लाइन बनाने के लिए जो हमारा ये पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर मिड पॉइंट से मिलाएंगे कुछ इस तरह से, और मिलाने के बाद जो हमारे ये नीचे लाइन आई है इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। आप देखिए, आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 4 पार्ट्स आर देयर, बट 10 ग्राम में आपके होते हैं 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मिड लाइन है अब उसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। अब इसके हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए हैं। अब इसको हम और 2 पार्ट्स और हमें चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये बनने के बाद जो हमारा ये राइट साइड है पार्ट, इसको मिड में मैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, जब हम खोलेंगे तो हमें यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, तो हम इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, तो हमारा 2 इक्वल स्क्वायर है, एक ये है 2 इक्वल ट्राइंगल है, एक नीचे ट्राइंगल है, एक साइड में ट्राइंगल आ गया, एक यहाँ पर। यहाँ से हम एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल निकालना है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये, इसको आपने ऐसे अभी तक काइट के शेप में पकड़ा, इसको थोड़ा घुमाइए, और अब देखिए जहां ये स्क्वायर है उसको आप ऐसे टच करेंगे, मिड में ऐसे फोल्ड करेंगे, और अब यहाँ पे जो लाइन बनेगी उससे आप बनाएंगे मिड में जो लाइन बनेगी स्क्वायर के साइड में हमें एक ट्रायंगल मिलेगा और यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ये देखिए, अब हम इनकी मार्किंग करते हैं। 1 2 ट्रायंगल की 3 4 5 6 7 आप मार्किंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स है, एक स्क्वायर है, एक पैरेललोग्राम है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब हम बच्चों को एक्टिविटी क्या दे सकते हैं, हम बच्चों को ये 7 पार्ट्स ऑफ 10 ग्राम देंगे और उनको बोलेंगे कि वो इससे स्क्वायर बनाए, ट्रायंगल बनाए, और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, वो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल के साथ साथ बहुत सारी शेप्स भी बनाते हैं, वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 10 ग्राम से ट्रायंगल भी बनाया है। बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे तो ये बन जाता है। देखिए, मैंने 10 ग्राम के पार्ट से
ये रेक्टेंगल भी बनाया है। ये जो 10 ग्राम है, अगर हम इसके पार्ट्स को थोड़ा कलरफुल बनाते हैं और पिक्चर्स बनाने का ट्राई करते हैं, डॉग, कैट, बहुत सारी इमेजेस हम इससे बना सकते हैं, तो वो बहुत कलरफुल और सुंदर लगता है। इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, आप देखिए, हमें इसका एरिया अगर फाइंड करना है तो हम बच्चों से कैसे फाइंड करा सकते हैं। हमें पता है 1 बॉक्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाफ और हाफ, ये देखिए आपका राइट और लेफ्ट है, तो टोटल इनको अगर हम मैच करेंगे तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली इसको करते हैं। जब वो कोई नई इमेज बनाते हैं तो वो उसके बाद उसका एरिया भी, उसके पार्ट्स का एरिया भी फाइंड इजीली कर पाते हैं। तो जब भी हम बच्चों को पेंटागन, ये 10 ग्राम सिखाएंगे तो हम ऐसी लाइंस का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर हम फर्स्ट टाइम बच्चों को सिखा रहे हैं तो हम ये लाइंस बनाएंगे। धन्यवाद। Dear students, today we are going to make a hand glove puppet with A4 sheet paper. So let us start. First we will take an A4 sheet paper and fold it into 2 halves from length side like this. Then we open it, and from the middle half again we fold the 2 halves to make it 3 fold. Okay, now you can see how it looks from both the sides. Now again we fold it, दोबारा इसको fold करेंगे and we can see how it looks like. Then we will fold it back again so that it becomes like a glove puppet. And we are able to hold it in our fingers, right? ऐसा लगेगा ये देखने में. Now we can put our fingers in it. Okay, now let us make some wings. Before that we need to stick this. We have a glue over here. We can use stapler also, or we can use Fevistick or Fevicol. I'm using Fevistick to paste the Now we have pasted it. Now we will fold it back again. Okay. Now I've drawn a feather. I'll fold it and cut so that 2 feathers are there along with the feather. Now I've cut along with the feather and its tail. I've also cut its beak in triangular shape. Okay, and then we will fold that beak so that we can paste it easily. Now let's paste the feathers on both these sides. And its tail on the back side. And its beak in the front side. So we have our bird ready. All that is left is to make the eyes. Okay, so we are making the eyes. Now we have our puppet ready. Now you can give it any name you like. It is a glove puppet. You will wear it in your hands.
I put more glue, so I'll have to take it out a bit so that my hand moves inside the glove. You just stick the corners, okay? Now see, we have our santru ready. Okay, it's orange, so I have named it santru. And we have a pilu. Okay. Dear students, today we are going to make a degree clock with two colorful papers. Okay, let's start. First we will take a bowl and we will make a circle on a colorful sheet, and then we will cut it. Now another circle of lighter color. Okay, so one circle I have is smaller and the other circle will be a bit bigger. On this circle, bigger one, I am going to write, first I am going to fold this circle, right? First I will fold it into half, and we know this is a semicircle. So on this part I am going to write 0, and on its opposite side I will be writing 180. Okay, so this I folded half and I've written 0 on the right side, and on the its opposite side I've written 180. Now again I will give it another fold. Now after I will open it. So this on top I am going to write 90 degrees, and on here from 0 to 90, then 90 plus 90 is 180 degree, then 180 plus 90 will be 270 degrees, right? So now our degree clock is ready. And we are going to again fold this circle also, and we will put a slit simply till its radius, not diameter, radius I am saying. And in the other circle also, from 0 degrees I am going to make a slit up till its radius. Now it's very simple. I am going to show. Now I am going to put one circle into the other. Smaller circle I will put like this. Okay, so if I want to show 0 degrees or 360 degrees, it's like this. Okay, now if I move the circle, now this blue portion this is an acute angle, and pink part will be reflex angle, right? Now I can make a right triangle. Okay, right angle. Now I will move this smaller circle. Now pink is again reflex and the blue portion is obtuse angle. Now I am going to make a straight angle with the blue portion.
Now this one is a straight angle. Both the portions here are in straight angle, that is 180 degree. Okay, so you try it yourself and then send me your videos. Okay. हेलो एवरीवन, ये मेरा सेकेंड TLM है जो मैं आपको शो कर रही हूँ. ये मैंने बनाया है इवन एंड ऑड नंबर्स बॉक्स. आप इसमें देख रहे हैं मैंने ये बॉक्स को इस तरीके से वाइट पेपर से मैंने इसको पूरा कवर अप किया है और फिर मैंने यहाँ पर हर जगह इवन और ऑड नंबर्स के बारे में शो किया है. जैसे इवन नंबर्स एंड्स विद 0, 2, 4, 6 एंड 8. देन इवन नंबर फॉर्म्स पेयर्स. बैक में भी मैंने इसके लिखा है. ऑड नंबर्स एंड्स विद 1, 3, 5, 7 एंड 9. देन ऑड नंबर्स नेवर फॉर्म्स पेयर. तो ये जो बच्चे हैं इसको रीड भी कर सकते हैं, दे विल गेट द नॉलेज ऑल्सो. और ये एक वर्किंग मॉडल है. और वर्किंग मॉडल कैसे है, मैंने यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने 2 कप्स इसमें यहाँ पर मैंने पेस्ट किए हैं ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के लिए. और यहाँ पर अंदर बॉक्स के अंदर इस तरीके से मैंने कुछ नंबर्स, आप ये देखेंगे ये नंबर्स मैंने नंबर स्टिक्स मैंने यहाँ पर डाली हुई है. सपोज़ अगर मुझे इसमें 1 डिजिट नंबर अगर मैं बच्चे से निकलवाना चाहती हूँ, 1 डिजिट नंबर, एक बच्चा 1 डिजिट एक लिया इसने 3. ना अब ही हैज़ टू फाइंड आउट टू विच कप ही शुड पुट दिस 3. सो if the child knows that it is the odd number, he will put it in the odd box. Similarly, we can call another child, and when he takes out this number, it is 8, and if he knows that it is the even number, then he will put it in the even box like this. So one by one we can call a child, and he will just pick out that number. Suppose it is 0, then if he knows that it is the even number, he will put it in the odd box. Thus, in the same way, this activity can be done not only of the single digit, but this activity can be done of the 2 digit numbers also and 3 digit number also. A child will take out the number, and suppose this number is 17. Okay. We ask the child to take out this number and just tell that whether this number is the odd number or the even number. Okay, so he will put this, if he knows that 17 is a odd number, then he will put it here like this. So this number can this activity can be done of 1 digit, 2 digit and 3 digits also. So suppose this is 546. Okay, this is a 3 digit number 546, and we can ask the children to tell whether this 546 is the odd number or the even number, and he will just put them in the proper boxes. So suppose the 546, this is the even number, he will just put it like here. So or if you want, then we can just ask the child to just look at the one individual number, and then he can put in these boxes of even, in cups of odd and even numbers. So thank you very much. हेलो एवरीवन, मैं आज आपको सबसे पहले अपना पहला TLM जो दिखाऊंगी, ये मैंने बनाया है मल्टीप्लिकेशन व्हील. इसमें मैंने ये नंबर्स लिखे हैं फ्रॉम 1 to 12, और ऐसे मैंने यहाँ पर ये एक एरो बनाया है. एरो में मैंने जो ये मल्टीप्लिकेशन व्हील बनाया है, ये मैंने 4 के टेबल का बनाया है. तो सपोज मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है 4 into, ठीक है. अब नीचे जो भी मैं यहाँ पर एक विंडो है, तो इस विंडो को मैं जैसे ही मूव करती हूँ तो ये नंबर्स अपने आप यहाँ पर शो होते हैं, डिफरेंट नंबर शो होते हैं. जैसे 4 into 2, तो सबसे नीचे वाले जो विंडो है वो उसमें इसका आंसर आ जाएगा. 4 into 2 is 8. सिमिलरली अब मैं इसको रोटेट करती हूँ.
एरो को रोटेट मैं कर सकती हूँ, किसी भी नंबर पर लेकर आ सकती हूँ। सपोज ये मैंने इसको रोटेट किया, अब ये आ गया 4 × 8। सो नीचे इसकी विंडो में इसका आंसर शो हो रहा है 4 × 8 इज़ 32। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको फिर से मैंने मूव किया। नाउ इट इज़ 4 × 11। सो 4 11 ज़ा, नीचे आंसर अपने आप शो हो रहा है यहाँ पर 44। तो ये बच्चों के लिए एक लर्निंग व्हील भी है। इसमें बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही मैंने जैसे 4 का बनाया है, ऐसे ही ये जो मल्टीप्लिकेशन व्हील किसी भी नंबर का बन सकता है। थैंक यू। देखिए, ये मैं TLM के अंतर्गत आपके सामने प्लेस वैल्यू के लिए मैंने TLM बनाया है। और इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक पेस्टल शीट ली है और पेस्टल शीट को डबल अटैच करके तो मैंने इसका पीछे इसको बैकग्राउंड बनाया है। इसके बाद मैंने दूसरी वाली कलर की जो पेस्टल शीट है उसको मैंने ऐसे स्टेप्स बनाई हैं, जिस पर मैंने 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिखी है। इसके बाद मैंने येलो कलर की एक और पेस्टल शीट ली है, जिसको स्क्वायर शेप में काट करके और उसको 4 जगह पर मैंने चिपकाया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैंने उसको वंस, फिर इसके बाद टेंस, इसके बाद 100 और इसके बाद थाउजेंड्स मैंने लिखा है। और इसको इस तरह से चिपकाया है कि ये दूसरी वाली जो स्ट्रिप्स है हमारी लंबी वाली, वो उसके अंदर से नीचे निकल जाए इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये चारों को चिपका दिया है। और इस TLM का जब हम यूज करेंगे वो हम प्लेस वैल्यू पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए यूज किया जा सकता है कि प्लेस वैल्यू जैसे वंस है, टेंस है, 100 है और थाउजेंड्स तक की जो प्लेस वैल्यू है वो हम इस TLM के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ। देखिए, मैंने TLM के अंदर ये डाइस बनाया है। इसको गत्ते से मैंने बनाया है और गत्ते के ऊपर इसको इस डाइस की शेप देकर और इसके ऊपर जो सफ़ेद जो वाइट कलर का मैंने आपके इसके ऊपर क्या है A4 शीट है उससे लेकर के इसको चिपका दिया है। इसके बाद इसके ऊपर मैंने नंबरिंग की है 1 से लेकर 6 तक, 6 जो इसकी फेसेस हैं उस पर। अब इससे हम बच्चों के लिए देखिए डाइस पढ़ाने के लिए हम इसे बता सकते हैं कि इसके देखिए 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद में हमें अगर इसका अपोजिट फेसेस को पता करना होता है तो उसके लिए हम बता सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ तो मैं 6 को देख रहा हूँ, तो इधर वाला फेस कौन सा है 1, तो ये 1 क्या हो गया इसके जस्ट अपोजिट हो गया। इसके बाद में टॉप है तो टॉप का बॉटम क्या होगा, तो नीचे हम 4। तो इस तरह से हम इसको सिखा सकते हैं। और जो हमारा जो चैप्टर है 4th क्लास का द वर्ड वी लुक्स, उसके अंदर जो डाइस के क्वेश्चन है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। So students, our first example is write down 246 in its expanded form. So here our number is 246. How many digits are there? 1, 2, 3. So this number is 3-digit number. First digit is at 1's place, second digit at 10's place, and third digit at 100 place. So 6 ones means, yes, 6 matchsticks. How many? Yes, 6 matchsticks. So 6 ones means number 6. 4 tens means 4 bundles of matchsticks. So here, what is the value of 4 tens? Is it 1, 2, 3, 4? No, because one bundle has 10 matchsticks. Second bundle also has 10 more sticks. Third bundle also has 10 more sticks.
and fourth bundle also has 10 more sticks. That means the value of 4 tens is actually 10, 2 bundles together 20, 3 bundles together 30, and 4 bundles together means 40. So 4 tens means number 40. Here 2 hundreds means 2 boxes of matchsticks, because one box shows 100 matchsticks. So 2 shows 100 plus 100, that is, yes, 200 matchsticks. So here students, we can say that 246 is equal to 200 plus 40 plus 6. Okay, that is 246. So expanded form of 246 is 200 plus 40 plus 6. Good morning students. How are you all? All good? Okay. So in mathematics class, chapter 2, fun with numbers. Our today's topic is numbers in expanded form. To understand this topic, we will do an activity. Okay students, so tell me, what are these? Yes, these are loose matchsticks. Each matchstick will show each number. Okay, like if we have to show number 1, we will put 1 matchstick. Means one number is equal to 1 matchstick. Okay, now if we have to show number 3, we will put, yes, we will put 3 matchsticks. Okay. Okay, but what if we have to show larger numbers like 45 or 136? It will be very time consuming na, to count 45 matchsticks. So to make it easy, we will make group of 10 matchsticks. Okay. So here are 10 matchsticks. 10 matchsticks, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So we will make group of 10 matchsticks. So it will be 1 bundle. Yes, 1 bundle has 10 matchsticks. That means value of this 1 bundle is equal to 10 matchsticks. Okay. So now students, what if we have to count numbers in hundreds? So for that, we will take a matchstick box. One matchstick box has 100 matchsticks. How many? 100. That means a value of 1 matchstick box is equal to 100 sticks. Okay. हेलो एवरीवन, मैं रूबी गहलावत केवी विकासपुरी से आज आपको एडिशन सिखा रही हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एडिशन करने की मशीन। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास कुछ पेन हैं। अब इनसे हम सीखेंगे कि हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, हियर वी हैव द नंबर 5 एंड वी हैव टू ऐड 3 in it. We will put 5 pens in this box. 1, 2, 3, 4 and 5. Now we will put 3 pens in that box.
1 2 3। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितना हुआ? हम जितने भी पेन्स हमारे पास इस बॉक्स में कलेक्ट हुए हैं उन सभी को बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद हम काउंट करेंगे कि हमारे पास टोटल कितना हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आज हमने इस मशीन से एडिशन करना सीखा। थैंक यू।